everyone, this is Salata. Welcome to my YouTube channel SM Education, the educational platform. Today we'll learn about the pedagogy of English paper 11th into 1 language across curriculum. So today we'll discuss the questions write about the LAC language across curriculum, write its importance in the language. Okay. So, language across curriculum is a modern approach of learning language. Okay, language across curriculum is the modern approach of approach to learning language. Language learning should occur throughout the school hour in the language classroom as well as another subject classroom. Okay, so language learning should occur होना चाहिए, should occur throughout the school hours. Okay, throughout the school hour the language learning should occur. Okay, as well as in the language class and other subject classroom. यानी language जो language learning है ये स्कूल आवर में होनी चाहिए और ये केवल लैंग्वेज क्लास में नहीं सभी सब्जेक्ट क्लासेस में भी होनी चाहिए. इट एम्स टू इन्फ्यूज फॉरेन लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम. ओके, इसका जो एम है ओके ये जो फॉरेन लैंग्वेज को अपने करिकुलम में ऐड करना है, लाना है. In this way, students can extend their knowledge for the second language beyond foreign language course. Okay, तो student क्या कर सकते हैं, जो students extend the knowledge of the second language, student अपने second language के knowledge को बढ़ा सकते हैं और foreign language course के बहुत ही पीछे जा सकते हैं. They may apply those skills to course materials. वो अपने ये स्किल जो है इसके स्किल को वो अपने कोर्स मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं एंड रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं एंड प्रोजेक्ट द इंक्लूजन ऑफ authentic course relevant source material in other languages prepare students for cross culture and multilingual demands of the global society. आजकल जहाँ भी जाओ आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. तो यह आपको ग्लोबल सोसाइटी में दुनिया के चारों तरफ जाओ आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा. बच्चे से पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कैरियर में भी. Language skills are important even if the students is studying a subject like science and mathematics etc. Language skill is very important. अगर बच्चे साइंस पढ़े या मैथमेटिक्स पढ़े लेकिन लैंग्वेज स्किल्स तो बहुत ज़रूरी हैं. In this subject students need reading, writing and reflecting competency and skills that are possible only through the competent language skill. तो इसमें क्या कर सकते बच्चे जो है अपने पढ़ाई में और अपने राइटिंग में रीडिंग में बच्चे अपने लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. Sometimes the difficulty in solving a word problem in mathematics is one of the understanding the language. Okay, तो बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है. तो बच्चे स्पोकन इंग्लिश में वीक होते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में वीक होते तो प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं जिससे उनमें मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम होता है. टीचर्स मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इन ऑल द एरियाज ऑफ द करिकुलम. ओके, तो बच्चे हर एरिया में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो भी हो हर एरिया में अपने बच्चों को अपने करिकुलम में लैंग्वेज के स्किल को बढ़ाना चाहिए. लैंग्वेज नेचुरली present in all areas of learning. Teacher must use all opportunity that curriculum offer for developing the language skill. Okay, तो टीचर भी वो अपॉर्चुनिटी दे कि बच्चों के जो लैंग्वेज है वो करिकुलम में वो डेवलप हो, करिकुलम के थ्रू करिकुलम में वो लैंग्वेज रहे जिससे बच्चों के जो स्पोकन है जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप्ड हो. ओके, A lot of attention need to be given to the other language skill like reading, listening and the speaking. तो ये सारी चीज़ों में क्या होना चाहिए कि बच्चों के जो वो अटेंशन दे कि लैंग्वेज को पढ़े, लिखे और सुने, समझे. For students, it helps learns to improve their communication skill in the foreign language. जो लैंग्वेज स्किल क्या करते हैं बच्चों के कम्युनिकेशन जो फॉरेन लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते हैं. इट हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न द कंटेंट मोर और बच्चे बहुत सारे कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं.
It helps learner to expand their ideas. Learners अपने ideas को expand कर सकते हैं. It helps learner to discuss different issues in the foreign language. So different issues जो foreign language के different issues है उसे भी वो solve कर सकते हैं. It helps learners to collect different technical terms related to different subject. डिफरेंट सब्जेक्ट में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो उस चीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड इट ओपन्स ए वास्ट कैरियर ओवर फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, और बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा कैरियर बना सकते हैं. इट हेल्प स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिटेड टू फॉरेन यूनिवर्सिटी. फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी वो अपना एडमिशन ले सकते हैं. इट फैसिलिटेट इफेक्ट सेल्फ स्टडी एंड रेफरिंग. और बच्चे सेल्फ स्टडी एंड रेफरिंग भी की सुविधा भी ले सकते हैं. फॉर टीचर्स, ऑल टीचर्स कैन इम्प्रूव देयर स्किल इन द फॉरेन लैंग्वेज. सभी टीचर्स अपने फॉरेन लैंग्वेज अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए. इट हेल्प्स टीचर्स टू टीच द कंटेंट इन द फॉरेन लैंग्वेज. इट हेल्प्स टीचर्स टू अपडेट their knowledge. It helps teachers to give their instruction to students in the foreign language. तो टीचर अपने बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन दे फॉरेन लैंग्वेज में दे, अपने अपनी लैंग्वेज में वो अपडेट रहे, नॉलेज को अपडेट करते रहें. और बच्चों के साथ जो उनका कम्युनिकेशन वो लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज में हो. अपने फॉरेन लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे बच्चे बेनिफिट पा सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा था कि हमारे जो फॉरेन लैंग्वेज है LAC लैंग्वेज एक्स करिकुलम से क्या फ़ायदा हो सकता है बच्चों को, टीचर को, तो उसके बारे में था. तो थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियोज़. इफ़ देयर इज सम मिस्टेक्स प्लीज़ show me the way and comment me what I will do for the better videos. So thank you for watching. Bye bye.